Hello dear students, today we will discuss receipt and payment account, income and expenditure account, and after then we discuss about how will you prepare income and expenditure account from receipt and payment account. Firstly discuss receipt and payment account. Nature. First point, nature. Receipt and payment is a real account. Second point, opening and closing balance. Opening balance of receipt and payment account is cash and bank. It start with cash and bank and also end with cash and bank balance. Just like this, to opening balance cash and bank and closing balance cash and bank. Third, its debit side is receipt side. Its debit side we record revenue receipts as well as capital receipts. Revenue receipts are related to current year, previous year, next year. Just like this, two revenue receipts and two capital receipts. Fourth point, credit side, payment side. Its credit side we record revenue payments and capital payment. Revenue payments are related to current year, previous year and also next year. Just like this, Y revenue payments, by capital payment. Fifth point, non-cash transactions. It is prepared on cash basis, so we does not record non-cash transaction in receipt and payment account. Purpose of preparing receipt and payment account is to find out the closing balance of cash and bank. Right? Receipt and payment, nature wise real account, start with opening cash and bank balance and ends with also cash and bank balance. Receipt side we record revenue receipts and capital receipts. Payment side we record revenue payments and capital payments. Non-cash transactions are not recorded because it is prepared on cash basis. And sixth point, purpose of preparing receipt and payment account is to find out the closing cash and bank balance at the end of year. Now next, income and expenditure account. Nature wise, income and expenditure is nominal account. Second, opening and closing balance. किसी भी बेटे nominal account का opening या closing balance नहीं होगा. So it does not have any opening or closing balance. Third, debit side, expenditure side. Its debit side are recorded revenue payments after all adjustments. कोई भी outstanding या prepaid है उन्होंने adjust करने तो बाद current year दी amount में आप payment side से record करांगे on accrual basis. Capital payments will be ignored. Capital payments ਨੂੰ ignore करांगे. Fourth point, credit side. Only revenue receipts are recorded after all adjustment, just like subscription. जिसमें कि मैं तो subscription तक करा चुका. Closing outstanding ऐड करना, opening माइनस करना और opening advance ऐड करना और closing advance माइनस करना है. सारी adjustments करने तो बाद adjust करने तो बाद जो भी payment आएगी उन्हें receipt side से record करांगे. Just like this, by revenue receipts to revenue payment. Fifth point, non-cash transaction. Non-cash transaction are also recorded in income and expenditure account. It is prepared just like profit and loss account, जिमें कि आप +1 तैयार कर दे सी सारी एडजस्टमेंट करने तो बाद और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिमें कि डेप्रीशिएशन वगैरह ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨॉन कैश ट्रांजैक्शन ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ just like depreciation to non cash transaction. Purpose of preparing income and expenditure account to find out the surplus or deficit during the year. If credit side is more than debit, there will be surplus or vice versa. If debit is more than credit, there will be deficit. Perform of income and expenditure account. Debit side will be expenditure side and credit side will be income side. Revenue payments after all adjustments, revenue receipts after all adjustments to non-cash transaction. If credit is more than debit, there will be surplus, and if debit is more than credit, there will be deficit. Now book open करो. Page number 1.7. Question number 16. Preparation of income and expenditure account from receipt and payment account. Receipt. It start with the opening balance. To balance PD on 1st April 2018. Your financial year 2018-19. So opening balance as on 1st April 2018 is 4,400. To subscription 46,100, to interest 2,500, to tournament fund 12,000.
तो चैक करिए बेटे सबसक्रिप्शन रेवन्यू रिसीट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, इंटरस्ट रेवन्यू रिसीट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक रिसीट है सो इट विल बी शोन एज लायबिलिटी। नाउ पेमेंट साइड सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, expenses, charity show, all are revenue payment, so all payments, these revenue payments will be debit to expenditure side of income and expenditure account. To donation 6,000, to donation for building extension 20,000, to receipt from advertisement in yearbook 5,200. Donation is not specific, 6,000 amount of donation is not specific, so it will be your revenue receipt. Donation for building extension is a specific donation, so it is your liability. To receipt from advertisement in yearbook, this is also a revenue receipt. ट्रस्ट ਨੂੰ NPO ਨੂੰ जो भी एडवरटाइजमेंट तो इनकम ਹੁੰਦੀ, नॉर्मली एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, बट जेकर क्लब ईयर बुक ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक एडवरटाइजमेंट कराਉਂਦੇ अपनी कोई भी NPO अपनी बुक इशू करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक ਆਪਦੀ एडवरटाइजमेंट कराਉਂਦੀ है तो ਉਹਦੇ रिगार्डिंग जो रसीट होएगी वो ट्रस्ट ਲਈ रेवन्यू रसीट होएगी, इनकम होएगी। बाय टूरनामेंट एक्सपेंस ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ टूरनामेंट फंड जो रसीट होएगा 12,000 ਦਾ इस चो माइनस करांगे और बैलेंस जो फंड है वो लाइबिलिटी साइड से मैंशन करांगे। बाय इन्वेस्टमेंट परचेज दिस इज कैपिटल पेमेंट, ये थोड़ी एसेट है बेटे, बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। बाय फर्नीचर इट इज़ ऑल्सो कैपिटल पेमेंट, ये भी एसेट साइड से आएगा। बाय बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 ये थोड़ा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होगा 16,100। Now adjustments, subscription outstanding as on 31st March 2018 were 4,500 and 31st March 2019 are 6,000. Opening outstanding and closing outstanding, जो तुसी बेटे हम सब्सक्रिप्शन का इनकम पाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इस अमाउंट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में ऐड करना है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में माइनस करना है। सैकेंडली बेटे एडजस्टमेंट्स ने, एवरी एडजस्टमेंट दो थावां ते आवेगी, जिमें कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है नाल तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड शो होएगा तो जो तुसी सब्सक्रिप्शन का इनकम लिखोगे वो इस अमाउंट में माइनस भी करोगे। उस तरह क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नाले तो सब्सक्रिप्शन की इनकम च ऐड होएगा और जो तुसी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसकी एसेट साइड। रेंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1,000 एंड इन द एंड वाज 1,500। ये भी एडजस्टमेंट है बेटे, देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट से ऐड कर लेना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर लेना है, जो फिगर आ गई वो थोड़ा नैट अमाउंट जोड़ा होएगा खर्चा होएगा, एक्सपेंस होएगा। और सैकेंडली देखो जो रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला है ओपनिंग बैलेंस शीट से लाइबिलिटी साइड आएगा तो जो क्लोजिंग वाला है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट से लाइबिलिटी आएगा। फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, जो ऊपर आप फर्नीचर परचेज करे बेटे 6,000 का 1 जुलाई में परचेज करे। डेट गिवन द परपज़ की है जो डेप्रीशिएशन लगाना है एंड ते 10% पर एनम, तो वो अकॉर्डिंग अपन 9 मंथ का डेप्रीशिएशन की चार्ज करांगे 1 जुलाई टू 31 मार्च। ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब एट फर्नीचर वैल्यूड 8,000, ओपनिंग फर्नीचर बेटे 8,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट्स भी आएगा एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट्स भी आएगा। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग गिवन है 15,000, ओपनिंग बैलेंस शीट्स भी आएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स भी आएगा। पर यदा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना कोई लिंक नहीं है, सिर्फ फर्नीचर से डेप्रीशिएशन लगावांगे 10% ओपनिंग से और जो ड्यूरिंग ईयर परचेज करे उस अमाउंट से। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रीशिएटिंग फर्नीचर बाय 10% पर एनम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इनकम्स एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन देखो 46,100 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ वो लिखना सब तो पहले। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
एडजस्टमेंट्स गिवन है 6000 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ए भी एडजस्टमेंट्स गिवन है 4500, नेट फिगर आ गई 47,600। इंटरेस्ट रिसीव होया सी बेटे रिसीट एंड पेमेंट्स, ओ भी इनकम, डोनेशन एंड रिसीट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 5200, टोटल रिसीट्स हो गई 61,300। नाउ टू सैलरी 18,200, टू रेंट 15,000 रिसीट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग पे करे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1500 ऐड हो जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000 माइनस हो जाएगा और नेट आ गया 15,500। प्रिंटिंग एज इट ही लिखना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी ये भी कॉपी पेस्ट है। नाउ डेप्रीशिएशन, ओपनिंग फर्नीचर 8000 सी, वो ऊपर 10% बेटे 800 रुपये लग गया और जो ड्यूरिंग द ईयर 6000 का परचेज करे तो 10% के अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग 600 पूरे साल का और 9 मंथ्स का 450 आ गया। सो टोटल डेप्रीशिएशन इज 1250। 61,300 जो टोटल पेमेंट्स माइनस करांगे और रिमेनिंग बैलेंस आ गया बेटे 2,950। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट सो देयर विल बी सरप्लस। ठीक है, नाउ हाउ विल यू प्रिपेयर बैलेंस शीट? फर्स्टली वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। नाउ व्हाई इज necessity of preparing opening balance sheet? Because opening capital fund is missing. सानू बेटे ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं गिवन है, सो वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। फर्नीचर ओपनिंग गिवन है बेटे 8000, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग गिवन है 15,000, कैश वेरी इंपॉर्टेंट बेटे इस गल का ध्यान रखना है। देखो जो तुम रिसीट एंड पेमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट फिगर है टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2018 4,400। ओपनिंग कैश बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट्स लिखना है और क्लोजिंग कैश है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट्स लिखना है। सो ओपनिंग कैश कितना अपने को 4,400। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 4,500। सो टोटल एसेट्स हो गया अपने को बेटे ओपनिंग 31,900। आउटस्टैंडिंग रेंट से अपने को ओपनिंग 1,000, 31,900 माइनस 1,000। सो ओपनिंग कैपिटल फंड इज 30,009। इन जर्नल फंड भी कह देंगे जर्नल फंड। नाउ वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। फर्नीचर 14,000, ओपनिंग कितना से बेटे 8,000, ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना हो गया 6,000, टोटल 14,000 और डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होया 1,250। सो रिमेनिंग बैलेंस इज 12,750। इन्वेस्टमेंट दिस इज ओपनिंग एंड इट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 25,000। क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 16,100 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट दैट इज 6,000। कैपिटल फंड ओपनिंग ये कॉपी पेस्ट करांगे 30,900 एंड जो सरप्लस आया सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर चों 2,950 इन बेटे कैपिटल फंड की करांगे ऐड करांगे। सो टोटल कैपिटल फंड इज 33,850। आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट्स गिवन है 1,500। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट हो बेटे स्पैसिफिक फंड ली थोड़ी कैपिटल रिसीट है, सो इन लाइबिलिटी साइड लिखा 20,000। टूरनामेंट फंड रिसीट एंड पेमेंट्स 12,000 रिसीट साइड पे पे बेटे और ये जो टूरनामेंट एक्सपेंस आप 7,500 माइनस करते हैं कि पेमेंट साइड पे गिवन सी। सो नेट टूरनामेंट फंड कितना आ गया तो 45 और बहुत साइड का सम अप करना है 59,850 एंड 59,850। थैंक यू।